Good morning children, welcome to your English grammar class. How are you children? I hope you are fit and fine and doing very well. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is treat. T-R-E-A-T, treat. हिंदी में इसका अर्थ है व्यवहार करना या बर्ताव करना. In English its meaning can be to behave in a certain way towards somebody or something. So I have picked this word from our EVS chapter number 10, useful animals. So we should treat animals with care. How does your friends treat you? आपके friends आपको कैसा treat करते हैं? The doctor is treating his patient. So इस तरह के इसके sentences हो सकते हैं. यहाँ ये doing word या verb की तरह mention किया गया है. What we are going to do today in our English class, children, first of all we will have a recap of the discussion that we had yesterday. Now after that we will be doing exercises that are on page number 36 and 37 on our English grammar book. So let us start. We are doing our topic pronoun these days. So what is pronoun? Pronoun क्या है? Pronoun is a word that takes place of a noun word. Pronoun एक ऐसा शब्द है जो कि किसी noun word की place ले लेता है, उसे replace कर देता है. और वो कैसे replace करता है? We have to consider that noun word. हमें उस noun word को consider करना है. वो मेल नाउन है या फीमेल नाउन है, या वो थिंग है, कोई चीज़ है, या वो आइडिया है, या नाउन वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है. नाउन वर्ड का हमें जेंडर देखना है, नाउन वर्ड का हमें काउंटिंग देखना है. काउंटिंग मीन्स नंबर, वो सिंगुलर है या प्लूरल है. सो उसी को कंसिडर करते हुए वी विल रिप्लेस अ नाउन वर्ड into pronoun. So yesterday we had discussed about subject and object pronouns. So I gave you a table that you had to make in your English grammar notebook. वो हमने टेबल भी किया. So we came to know about subject and object pronouns. Children, the recap regarding subject and object pronoun. Subject pronoun क्या होते हैं? Here you can see this is the column for subject pronouns. I, you, we, they, he, she, it are called subject pronouns. Subject pronouns क्या होते हैं? Subject pronouns are used as the subject of a sentence. वो sentence के subject के रूप में काम करते हैं. जो काम करने वाला होता है उस noun word के लिए हम वो pronoun use करते हैं. Suppose I am playing. जो काम कौन कर रहा है? I. और हम क्या एक्शन कर रहे हैं? प्ले, खेलने का. सो आई एम प्लेइंग. सो आई क्या है? सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि सब्जेक्ट का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में. व्हाट आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिन पर किसी एक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है, जो एक्शन को रिसीव करता है. जो भी कुछ काम हुआ उस काम को जिसने रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. शी गेव मी अ बुक. शी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन. शी ने काम किया. क्या काम किया? दिया बुक को. और बुक किसको दिया? मुझे. सो देन वी विल यूज मी. वी विल नॉट राइट लाइक दैट शी गेव आई अ बुक. ऐसा नहीं लिखेंगे. जब हमें बुक मिला है, जिसको बुक मिला है, मुझे मिला है, तो वी विल राइट मी. और आपको मिला है शी गेव यू अ बुक, तो यू विल राइट यू. सो जिसे जो एक्शन को रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सम ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर रिटन हियर. मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट. सो नाउ आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड the difference between subject and object pronouns. Subject pronouns वो pronouns होते हैं जो किसी action को करते हैं, और object pronouns वो pronouns होते हैं जो उस action को receive करते हैं. Now we will be doing exercise that are on page number 36 and 37 in our English grammar book. So open your English grammar book, page number 36. Children, this is page number 36. We are going to do this exercise. So I am sure you have opened your English grammar books till now.
Write details like classwork, today's date. This exercise is on page number 36. Choose the correct word. हमें correct word choose करना है. Number 1. How are dash? Him, you, this morning. The sentence is how are dash this morning? इस morning में कैसे हैं? Options are him and you. How are him this morning or how are you this morning? So what will be the right answer, children? How are you this morning? आप इस morning में कैसे हैं? So we have to do the reading of the sentence that is given. हमें उसका reading अच्छे से करना है, उसे understand करना है. At number 2, please help dash complete my homework. मेरा homework complete करने में मुझे मदद करें. So please help I. काम क्या होगा? होमवर्क में मदद करना. और किसे जो उस होमवर्क में मदद कौन लेगा? आई या मी? मी. जो एक्शन का रिजल्ट जिस पर पड़ता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सो यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी यूज होगा रादर देन दिस सब्जेक्ट प्रोनाउन. प्लीज हेल्प आई कंप्लीट माई होमवर्क. नो, दिस इज द रॉन्ग वर्ड. प्लीज हेल्प मी कंप्लीट माई होमवर्क. मेरा होमवर्क कंप्लीट करने में मेरी मदद करो. एट नंबर 3, तुहिना एंड आई आर गोइंग टू रेशम्स बर्थडे पार्टी. तुहिना और मैं रेशम की बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं. तुहिना एज द नेम सजेस्ट क्या हो सकता है? ये फीमेल नाउन है. शी इन्वाइटेड डैश टू हर हाउस. उसने हमें अपने घर पर इन्वाइट किया है. बर्थडे किसका है? रेशम का. और इन्वाइट किसने किया है? रेशम ने. सो रेशम भी एज द नेम सजेस्ट कि ये फीमेल नाउन है. सो यहाँ उसके लिए शी ई यूज़ किया गया है. शी इन्वाइटेड. बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के बाद हम जाते हैं. सो शी इन्वाइटेड. तो वी आर टॉकिंग अबाउट तुहिना एंड आई. ऐसा जो पर्सन जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ और साथ में कोई और है तो ये प्लूरल फॉर्म है और हम उसकी जगह क्या करेंगे? अस. शी इन्वाइटेड अस टू हर हाउस. तो काम क्या हुआ? इनवाइट करना. और उस किसे इनवाइट किया गया? उस एक्शन का इम्पैक्ट किस पर पड़ा? हम पर. क्योंकि तुहिना और आई क्या है? हम हैं. तो हम क्या यूज़ करेंगे वर्ड? रादर देन वी. हम वी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो वो है जो सब्जेक्ट होता है. हम ये वर्ड चूज़ करेंगे अस. शी इन्वाइटेड अस टू हर हाउस. उसने हमें अपने घर पर इन्वाइट किया. At number 4, the new boy in our class lives near your colony. जो नया लड़का है हमारी क्लास में वो तुम्हारी कॉलोनी में रहता है. Do you know dash? क्या तुम उसे जानते हो? हर या हिम. सो यहाँ पर तो बॉय है उसके लिए व्हाट प्रोनाउन हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हर या हिम? हिम यूज़ करेंगे. Do you know him? इसमें भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है जो कि प्रोनाउन जो कि मेल नाउन के लिए कहा गया है या फीमेल नाउन के लिए. तो ये प्रोनाउन मेल नाउन के लिए कहा गया है तो वी विल चूज दिस वर्ड हिम. द न्यू बॉय इन आवर क्लास लिव्स नियर योर कॉलोनी. डू यू नो हिम? नेक्स्ट एट नंबर 5, कैन यू लेंड डैश योर बुक फॉर टुडे. क्या तुम उधार दे सकते हो? मुझे यूज़ करनी है या पढ़नी है बुक फॉर टुडे आज के लिए. कैन यू लेंड हर योर बुक? कैन यू लेंड मी योर बुक? सो वट विल बी द राइट ऑप्शन? मी. कैन यू लेंड मी. कोई किसी से पूछ रहा है क्या तुम मुझे आज के लिए अपनी बुक दे सकते हो? कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर टुडे. एट नंबर 6, राधा इज़ माई गुड फ्रेंड. राधा मेरी अच्छी दोस्त है. आई विल बेक अ केक फॉर. मैं बेक करूँगी एक केक फॉर लिए. किसके लिए? फॉर डैश हर और शी. तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो राधा के लिए बेक करूँगी. बट वट प्रोनाउन वी विल यूज़ हेयर? हर और शी. शी क्या होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन. और हर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. वी विल रीड द सेंटेंस अगेन. राधा मेरी अच्छी दोस्त है. मैं उसके लिए केक बनाऊँगी. सो आई यहाँ पर है. काम कौन करने वाला है? आई. मैं करूँगी काम. और मैं क्या वर्क करूँगी? मेरी जो वर्ब एक्शन क्या होगा? केक को बेक करना. और वो एक्शन का रिजल्ट किसके लिए होगा?
फॉर राधा। तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई विल बेक अ केक फॉर हर। राधा इज़ माई गुड फ्रेंड, आई विल बेक अ केक फॉर हर। एट नंबर 7, सोहम एंड सुनील आर गुड सिंगर। सोहम और सुनील अच्छे गायक हैं, गाना गाते हैं। आई लव लिसनिंग टू डैश, दे और देम। सो दे एंड देम किसके लिए यूज़ हुआ है? सोहम और सुनील के लिए। बट हमें कौन सा वर्ड इनमें से जो अप्रोप्रिएट चूज़ करना है प्रोनाउन, वो हमें कंसिडर करना है। सोहम और सुनील अच्छे गायक हैं। आई लव, यहाँ काम कौन कर रहा है? आई, मैं काम कर रही हूँ, मैं उन्हें सुन रही हूँ, उनका गाना सुन रही हूँ। और काम क्या हो रहा है? गाना सुनना। और वो रिजल्ट एक्शन का किस पर पड़ रहा है? उन पर। सो वी विल यूज़ दिस प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ एक्शन का रिजल्ट पड़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन का काम करता है। सो सोहम एंड सुनील आर गुड सिंगर्स, आई लव लिसनिंग टू देम। एट नंबर 8, डैश डांस वेल। यू ऑप्शन स्लैश इट। हु डिड यू लर्न डैश, ऑप्शंस हैं देम, इट, फ्रॉम। आप डांस अच्छा करते हो, तो हमें ये तो ऑब्वियस है, इट डांस वेल या यू डांस वेल। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यू डांस वेल, आप अच्छा डांस करते हो। कोई किसी को कह रहा है कि आप अच्छा डांस करते हो। हु डिड यू लर्न इट फ्रॉम, आपने इसे किससे सीखा, मीन्स किसको सीखा? डांस को। और इट किसके लिए यूज़ हुआ है? डांस के लिए। तो हु डिड यू लर्न देम फ्रॉम? नो, हु डिड यू लर्न इट फ्रॉम, इसे आपने किससे सीखा? चिल्ड्रन, कन्फ्यूज़न तब होता है जब हमें एक ही नाउन के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में से चूज़ करना है। लाइक वी कैन से हेयर, यहाँ पर या यहाँ पर, कि हम इनमें से कौन सा प्रोनाउन यूज़ करें, क्योंकि दोनों का मतलब एक है। लेकिन हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये किस जगह यूज़ हो रहे हैं। जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और काम का रिजल्ट जिस पर पड़ रहा है और एक्शन का जो रिजल्ट है जिस पर पड़ रहा है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो फर्दर आई वांट टू टेल यू दैट वी विल स्किप दीज टू एट नंबर 9 एंड नंबर 10। हम इन्हें स्किप करेंगे, हम इन्हें नहीं करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो स्किप दिस एक्सरसाइज, हम इस एक्सरसाइज को भी स्किप करेंगे, हम इसे नहीं करेंगे। सो आई विल बी सेंडिंग यू अ वर्कशीट आफ्टर दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूँगी। सो वी विल डिस्कस दैट वर्कशीट इन डिटेल, उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट द कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। चिल्ड्रन, दिस इज पेज नंबर 37। दिस इज द पार्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ए, जो कि हमने स्किप या ओमिट किया है। वी विल नॉट डू दिस एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज बी दैट वी आर गोइंग टू डू। एक्सरसाइज बी, रीड दिस सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज को रीड करेंगे। रिप्लेस द वर्ड इन कलर विद द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ जो वर्ड है कलर में, उन्हें रिप्लेस करना है। वो प्रोनाउन ही है बट वो करेक्ट प्रोनाउन नहीं है, उन्हें हमें सही प्रोनाउन वर्ड से रिप्लेस करना है। सो एट नंबर 1, माई मदर गेव आई अ ब्यूटीफुल हैट। मेरी मम्मी ने मुझे एक ब्यूटीफुल हैट दिया। सो माई मदर, काम किसने किया? सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। और क्या काम क्या हुआ? हैट दिया। काम क्या हुआ? देना। और एक्शन क्या है? देना। और एक्शन का इम्पैक्ट किस पर पड़ा? मुझे। दिया किसे? मुझे। सो हम यहाँ क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। माई मदर गेव मी अ ब्यूटीफुल हैट। इस तरह से और सेंटेंसेस हो सकते हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही गेव हिम अ बुक। सो इस तरह से जब काम का, किसी एक्शन का इम्पैक्ट जिस पर पड़े, उसका वहाँ पर हम उसे उस जगह पर जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एट नंबर 2, दीज आर शीलाज बुक्स। ये शीला की किताबें हैं। प्लीज़ गिव इट टू हर। ये उन्हें उसे दे दो। हर किसके लिए यूज़ हुआ है? शीला के लिए। और बुक्स के लिए क्या यूज़ हुआ है? इट। बट एज यू नो कि बुक्स क्या हैं? मोर देन वन। ऐसे हम नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनके लिए या एनिमल्स के लिए इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि देना, और किसी को कहा जा रहा है कि आप उसे वो किताबें उसे दे दो। तो एक्शन का इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? जो कि देना, जिसे दिया जा रहा है। सो यहाँ पर जो
प्रोनाउन जो कि यूज़ हुआ है इट, वो बुक्स के लिए करेक्ट नहीं है, हम यहाँ देम यूज़ करेंगे। प्लीज़ गिव देम टू हर, देम किसके लिए यूज़ हुआ है? बुक्स के लिए। दीज आर शीलाज बुक्स, प्लीज़ गिव देम टू हर, हर किसके लिए यूज़ हुआ है ऑलरेडी? शीला के लिए। एट नंबर 3, रोहन्स फादर इज़ अ गुड कुक, रोहन के पापा एक अच्छे कुक हैं। हिम कुक्स एवरी संडे, वो हर संडे खाना पकाते हैं। सो हेयर यू कैन सी कि हिम लिखा गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए ही। रोहन के फादर क्या है? मेल नाउन, तो उनके लिए ही यूज़ होगा। सो ही कुक्स एवरी संडे, वो हर संडे बनाते हैं, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा हुआ है। ही कुक्स एवरी संडे। एट नंबर 4, मी लाइक टू ईट ओट्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट में ओट्स और मिल्क खाना पसंद है। सो यहाँ काम कौन कर रहा है? मैं। सो मैं जब मैं कुछ एक्शन कर रही हूँ तो मेरे लिए जो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा दैट विल बी आई। आई लाइक टू ईट ओट्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। सो एट नंबर 5, रिमी हैज़ अ पेट कैट, रिमी के एक पालतू कैट है। हर गिव्स देम मिल्क एवरी डे, तो यहाँ पर रिमी की बात करी जा रही है, तो हर किसके लिए यूज़ हुआ है? रिमी के लिए, बट वो करेक्ट प्रोनाउन नहीं है तो ये फीमेल नाउन के लिए यूज़ होने वाला हर, बट हर यहाँ पर जो एक्शन है वो हर नहीं कर रहा है। शी जो एक्शन करता है, जो सब्जेक्ट का काम करता है, वो होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो शी गिव्स देम, देम गलत प्रोनाउन है, रॉन्ग प्रोनाउन है, और कैट के लिए क्या यूज़ होना चाहिए? इट। शी गिव्स इट मिल्क एवरी डे। रिमी हैज़ अ पेट कैट, शी गिव्स इट मिल्क एवरी डे, वो उसे मिल्क देती है एवरी डे। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा हुआ था, इसकी जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन हमें यूज़ करना था, और कैट के लिए रॉन्ग प्रोनाउन यूज़ हुआ था इट, जो कि एक ही है, कैट सिंगुलर है, तो उसके लिए इट प्रोनाउन यूज़ होना था। एट नंबर 6, समीरा हैज़ गॉन टू मीट कीर्ति, समीरा कीर्ति को मिलने गई है, कृति को मिलने गई है, सॉरी। डैश आर प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन टुगेदर, वो प्लान कर रहे हैं कि साथ में वेकेशन पर जाएं। सो देम यहाँ पर यूज़ किया गया है किसके लिए? समीरा कृति के लिए। ये मोर देन वन है, तो यहाँ क्या यूज़ होगा? जो काम कर रहे हैं, जाना किसे है? क्या प्लान कौन कर रहे हैं? सुमेरा एंड कृति, और काम क्या किया जा रहा है? वो जाने का काम, प्लान करने का काम। सो दे आर प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन टुगेदर, यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, दे आर प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन टुगेदर। नेक्स्ट एट नंबर 7, अशोक इज़ अ पॉपुलर डांसर इन अवर स्कूल, अशोक हमारे स्कूल में पॉपुलर डांसर है। एवरीबडी नोज हर, अब एज द नेम सजेस्ट कि अशोक क्या है? मेल नाउन। सो यहाँ करेक्ट प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है अशोक के लिए, वी शुड यूज़ हिम। एवरीबडी नोज हिम, हर कोई उसे जानता है। वेरी वेल, ही टोल्ड अस, अशोक ने हमें बताया। ही किसके लिए यूज़ हुआ है? अशोक के लिए। दैट किसे बताया? हमें। तो काम किसने किया? अशोक ने। ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसने ही ने काम किया, और काम क्या किया? बताने का, और काम का इम्पैक्ट किस पर पड़ा? हम पर। तो जब ऐसा होता है तो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ही टोल्ड अस दैट ही जस्ट वॉन द नेशनल डांस कॉम्पिटिशन, उसने हमें बताया कि उसने अभी नेशनल डांस कॉम्पिटिशन जीता है। सो चिल्ड्रन, वी हैव 3 more sentences for this exercise, but we will not do them, वो भी skip होंगे, omit होंगे। So we will discuss this chapter और do this chapter up to here। जो लास्ट के इससे आगे हैं नेक्स्ट पेज पर, सेंटेंस नंबर 8, 9 एंड 10, वो भी स्किप होंगे। सो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। आई विल बी सेंडिंग यू अ वर्कशीट इन द नेक्स्ट क्लास, आपको एक नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट के थ्रू मैं इसे चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूँगी। So that's all for our English class. We will meet in our next English class. Till then, bye bye, take care.